سب سے پہلے آپ کو بتائیں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی برائے کورونا کنٹرول اجلاس میں اہم فیصلے سامنے آئے ہیں۔ پنجاب میں شاپنگ مالز اور پلازے صبح 9 سے شام 5 بجے تک کھولنے کی اجازت دینے کا فیصلہ۔ فوڈ کورٹ، سٹالز، ریسٹورانٹس اور کھیل کے میدان بند رہیں گے۔ ریسٹورانٹ عید کے بعد کھلیں گے۔ دن اور اوقات کا تعین بعد میں کیا جائے گا۔ کورونا ڈیوٹی کرنے والے ڈاکٹر، ہیلتھ پروفیشنلز کا تعین کرنے کے لیے 5 رکنی کمیٹی قائم کر دی گئی۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بڑی پریشانی رہی، عوام اور تاجر تنظیموں نے جمعے اور ہفتے کو بینک کھولنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ تاجر تنظیموں کا کہنا ہے کہ رمضان مبارک میں بینک اوقات بھی محدود ہیں۔ کاروباری سرگرمیاں بحال ہونے کے بعد لین دین کے معاملات میں مشکلات کا سامنا ہے۔ عید سے قبل مارکیٹیں اور شاپنگ مال کھلے رہیں گے۔ عوام کی سہولت کے لیے جمعے اور ہفتے کو بینک کھولے جائیں گے۔ ایکسپورٹ انڈسٹری کو ایک بار پھر مشکلات کا سامنا، 60% پیداوار بند ہو گئی ہے۔ چیئرمین پاکستان ہوزری مینوفیکچررز ایسوسی ایشن میاں نعیم کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل کسٹمر کورونا سوٹ اور میڈیکل ماسک طلب کر رہے ہیں، مگر حکومت ہمیں برآمد کی اجازت نہیں دے رہی۔ ایکسپورٹ انڈسٹری کو ایک بار پھر مشکلات کا سامنا ہے۔ چیئرمین پاکستان ہوزری مینوفیکچررز ایسوسی ایشن میاں نعیم احمد کہتے ہیں اس وقت انٹرنیشنل کسٹمر کورونا سوٹ اور میڈیکل ماسک کی ڈیمانڈ کر رہا ہے، مگر حکومت کورونا سوٹ کی ایکسپورٹ کی اجازت نہیں دے رہے۔ حکومت اس کی اجازت دے۔ انٹرنیشنل بائر ہے نا، وہ گارمنٹ نہیں مانگ رہا، وہ کرونا کٹس جو کور آل سوٹس ہیں وہ مانگ رہا ہے، سرجیکل گلوز مانگ رہا ہے، سینیٹائزرز مانگ رہا ہے اور سرجیکل ماسکس مانگ رہا ہے۔ گورنمنٹ نے سرجیکل ماسکس، گلوز اور کرونا کور آل کٹس ہے اس پہ پابندی لگا رکھی ہے اس کی ایکسپورٹس پہ۔ ایکسپورٹرز کی جانب سے حکومت سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ایکسپورٹ کی اجازت دی جائے تو یہ ایک سنہری موقع ہے کہ پاکستان میں زیادہ سے زیادہ زر مبادلہ لایا جا سکے۔ سنہری موقع ہے، بائرز کی ڈیمانڈ ہے، کسٹمر ہمارے ساتھ انٹیکٹ ہے کہ ہمیں فوراً وہ سرجیکل سوٹس جو ہیں وہ بھیجے جائیں، تو نان ووون سوٹس جیسے کہتے ہیں۔ تو میری یہ ریکویسٹ ہے گورنمنٹ سے کہ ہماری اس مطالبے کو، جائز مطالبے کو سمجھا جائے۔ ملک میں زر مبادلہ بھی آئے گا اور مزدور کا چولہا بھی جلے گا اور صنعت کار کا چولہا بھی جلے گا۔ ایکسپورٹرز کی جانب سے حکومت سے کورونا سوٹ اور ماسک کی ایکسپورٹ کی اجازت کا مطالبہ کیا جا رہا ہے تاکہ انڈسٹری اور مزدوروں کا چولہا بھی جل سکے۔ کیمرامین مجاہد علی کے ساتھ فضیل احمد، فیصل آباد۔ اور اب کچھ بات کریں گے ٹرانسپورٹ کے حوالے سے۔ آپ کو بتائیں فیصل آباد میں SOPs کے مطابق ٹرانسپورٹ چلانا ایک چیلنج بن گیا ہے۔ موٹر وے سمیت بیشتر روٹس پر پبلک ٹرانسپورٹ مکمل طور پر بند ہے۔ یہ ہے فیصل آباد کا جنرل بس سٹینڈ، جہاں سے پنجاب سمیت دیگر صوبوں کو بھی گاڑیاں جاتی ہیں۔ گاڑی کے پورے خرچے پر آدھی سواریاں لے جانا اور SOPs کے مطابق ٹرانسپورٹ چلانا ایک چیلنج بن گیا ہے، جس وجہ سے سرکاری اڈا بھی تقریباً بند ہے۔ بسدار CM سے ریکویسٹ کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں کہ پورے پنجاب میں جگہ جگہ سیکٹری RTA جو فوائد آئے ہیں ان کو برائے مہربانی کریں، کسی کا ساتھ نجائز نہ ہو، کسی کا نجائز چلان نہ ہو۔ موٹر وے سمیت بیشتر روٹس پر پبلک ٹرانسپورٹ مکمل طور پر بند ہے۔ AC والی گاڑیاں اور نجی لاری اڈے بھی بند ہیں۔ چالو روٹس پر بھی مسافر ماسک اور سینیٹائزرز استعمال کرنے سے گریزاں ہیں۔ تاہم ایسوسی ایشن کے عہدیداران کہتے ہیں کہ SOPs پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ صبح سے سارے بیٹھے ہیں، کوئی گڈی نہیں ملی، بہت پریشانی ہے۔ 60-70 لاکھ روپے لا گڈی بنائی، وہ آ کے جو واپسی گڈی آنی ہے چکر لا کے 10-12 ہزار روپے کولوں مالک دے تو نجائز ہی ہے۔ ایسے کہنے کہ مہربانی ساری جہاں سیٹاں نے گڈی دیاں یہ پوریا ہون، اسی ٹوکن جہاں 60 سیٹاں دین رہے ہیں تے سواریاں اسی 30 پائیے، یہ تو نہیں لکھا کتے بھی۔ ٹرانسپورٹرز نے SOPs میں نرمی لانے کے لیے اپیل کر دی ہے۔ کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ رمضان مرزا، فیصل آباد۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سندھ باد اور فن لینڈ کے مالکان نے عید کے لیے پارک کھولنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ لاک ڈاؤن میں نرمی ہوئی تو اقبال سٹیڈیم کے اطراف سندھ باد اور فن لینڈ کے مالکان نے بھی پلے لینڈ کھولنے کی اجازت مانگ لی۔ اس حوالے سے فن لینڈ کے مینیجر کیسر شاہ کا کہنا تھا کہ بچوں کے کھیلنے کی کروڑوں کی مشینری خراب ہو رہی ہے، ملازمین کی تنخواہیں ادا کرنا محال ہے، عید پر لوگوں کو تفریح مہیا کی جائے، حکومت SOPs کے تحت یہ مراکز کھولنے کی اجازت دے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے کافی زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہر انڈسٹری کو۔ اسی طرح امیوزمنٹ پارک بھی ایک انڈسٹری ہے اور یہاں پہ امپلائیز کا کافی روزگار اس سے منسلک ہے، اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں گورنمنٹ کو اس طرح کے SOPs دیں تاکہ عید پر لوگوں کو تھوڑی سی تفریحی کوئی اس طرح کی مہیا ہو۔ سندھ باد اور فن لینڈ کے مالکان کا کہنا تھا کہ ہمیں پلے لینڈ میں شہریوں کی تعداد بتا دی جائے تاکہ اس سے زیادہ لوگ پارک میں داخل نہ ہونے دیں، ہمارا لاکھوں کا نقصان ہو رہا ہے، حکومت ریلیف دے۔ کیمرامین شاہ زیب کے ساتھ علی رضا، فیصل آباد۔
और अभी आपको बताएं कि फैसलाबाद कोरोना वायरस के पेश नज़र फेस्को हेड ऑफिस में सीईओ फेस्को की ऑनलाइन खुली कचहरी लगाई गई। सीईओ ऑफिस फेस्को शफीकुल हसन ने सार्फिन के मसाइल बजरिया टेलीफोन सुने। कोरोना वायरस के पेश नज़र फेस्को हेड ऑफिस में ऑनलाइन खुली कचहरी का इनकाद किया गया। ऑनलाइन खुली कचहरी में सीईओ फेस्को शफीकुल हसन ने सार्फिन के मसाइल बजरिया टेलीफोन सुने। खुली कचहरी में फेस्को की 5 सर्कल्स के 8 अजला के सार्फिन के मसाइल सुने गए। सीईओ फेस्को की जानिब से सार्फिन के मसाइल को जल्द हल करने की यकीन दहानी करवाई गई। इस मौका पर इनका कहना था कि ऑनलाइन खुली कचहरी का मकसद कोरोना वायरस से बचाव के साथ साथ सार्फिन के मसाइल के हल करना है। पहले हम सारी कंप्लेंट्स जो हैं ये कचहरी के लिए हल किया करते थे, लेकिन कोरोना की वजह से ये हमारा सिलसिला जो था ये आधी तौर पर मुक्ता हो गया था। लेकिन फिर भी हमने ये महसूस किया कि जो लोग अपनी कंप्लेंट्स नहीं करवा पा रहे तो क्यों ना ये खुद इनको टेलीफोन पे हम सुने और इनकी बार वक्त इजाला किया जा सके। सीईओ फेस्को शफीकुल हसन की जानिब से सार्फिन के मसाइल हल करने में सुस्ती इख्तियार करने वाले मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई का अंदिया भी दिया गया। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ताजरों के लिए अच्छा फैसला सामने आया है। पूरा हफ्ता कारोबार करने की इजाजत दे दी गई। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ताजरों के लिए अच्छा फैसला सुनाया गया तो ताजरों ने भी सुप्रीम कोर्ट को खराज तहसीन पेश किया। सिटी क्लॉथ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी कहते हैं फैसले का खैर मकदम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले का खैर मकदम करता हूं और मैं अपनी ताजर बरादरी की जानिब से ये भी बताना चाहता हूं कि ये जो फैसला हुआ है इससे बाजारों में आप देखेंगे रश में काफ़ी हद तक कमी आ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बाजारों में रश भी कम हुआ है। अब्बास सदर शेख का कहना है कि हम SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल ताजर यकीनी बनाएंगे। इंशाल्लाह हमारे जो दुकानदार हैं वो SOPs की मुकम्मल पाबंदी करेंगे, फेस मास्क इस्तेमाल करेंगे, हैंड सैनिटाइज़र, ग्लव्स और ये सोशल डिस्टेंस जो आपको अभी नज़र आ रहा है सारा, ये सारा कुछ इंशाल्लाह इसी तरह चलता रहेगा। अब्बास सदर शेख ने कहा कि अदालत के फैसले के बाद मार्केटों में हजूम कम होना शुरू हुआ है। समाजी फासला भी बरकरार रखना आसान हो गया है। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। अभी आपको बताएं कि दुबई से आने वाले तमाम मुसाफिरों की टेस्ट रिपोर्ट्स नेगेटिव आ गई हैं। 142 में से 94 को फास्ट यूनिवर्सिटी चिन्योट में करंतना किया गया था। दुबई से वतन वापस आने वाले 94 मुसाफिर चिन्योट मुंतकिल किए गए। फैसलाबाद आने वाली फ्लाइट के 142 में से 94 मुसाफिरों को फास्ट यूनिवर्सिटी करंतना सेंटर में मुंतकिल किया गया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रियाज की हिदायत पर इंतजामिया की जानिब से तमाम मुसाफिरों को करंतना सेंटर में रखकर टेस्ट रिपोर्ट के लिए नमूना जांच दिए गए। तमाम अफराद की टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आने पर उन्हें घर जाने की इजाजत दे दी गई। DC चिन्योट मोहम्मद रियाज, DPO सईद हसनैन हैदर, लेफ्टिनेंट कर्नल आदिल महमूद ने फास्ट यूनिवर्सिटी करंतना सेंटर का दौरा भी किया। अफसरान ने करंतना सेंटर में सहूलियात, सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात का जायजा लिया। फसीउल्लाह, सिटी 41, चिन्योट। ईद उल फितर की आमद है। कमालिया में जहां बड़े ईद की खुशियों में शामिल होने के लिए शॉपिंग कर रहे हैं तो वहीं बच्चे भी वालिदैन के साथ मनपसंद रंगों के सूट खरीदते दिखाई देते हैं। ईद उल फितर की आमद बड़ों के साथ बच्चे भी ईद की खुशियों में शामिल होने के लिए शॉपिंग कर रहे हैं। वालिदैन का कहना था कि हालात चाहे जैसे भी हों, बच्चों को तो ईद की खुशियों में शरीक होना है। लेकिन जहां लॉकडाउन की वजह से दूसरी अशिया महंगी हुई तो वहीं बच्चों के सूट की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। यहाँ पर बाजार किसी चीज़ को हाथ नहीं लग रहा। हम बेबी शॉप पर आए हैं, लेकिन यहाँ पर रेडीमेड वाली शॉप पर जिस चीज़ का भाव पूछ रहे हैं उस चीज़ का रेट ज़्यादा है। लेकिन क्या करें, बच्चों की खुशी के साथ अपनी अपनी खुशी भी इज़हार करनी पड़ती है। लॉकडाउन में नरमी होते ही शहरियों की बड़ी तादाद मार्केटों में शॉपिंग करने पहुंची तो दुकानदार भी खुश दिखाई दिए। दुकानदारों का कहना था कि लॉकडाउन में नरमी पर हुकूमत की शुक्रगुजार हैं। हुकूमत को चाहिए कि वो 24 घंटे काम करने की इजाज़त दे ताकि बाजारों में जो हजूम बन जाता है उसको कम किया जा सके। ये जो 2 महीने की कसर है, अल्लाह का शुक्र है वो पूरी हो रही है। आस्ता आस्ता ठीक है, काम भी ठीक है और ईद की खुशियाँ हम सब मिलकर अपना इंशाल्लाह मनाएंगे। बहुत खुशी हुई है कि जो कारोबार खुल चुके हैं। दुकानदारों की जानिब से ईद उल फितर के मौके पर लॉकडाउन में नरमी के फैसले को खुशाइंद करार दिया गया। कैमरामैन राशिद अनवार के हमरा, रिजवान खान, सिटी 41, कमालिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, हुकूमत की जानिब से टोबा टैक्सिंग समेत पंजाब भर के यूटिलिटी स्टोर पर NGO समेत किसी भी शख्स को इकट्ठा राशन खरीदने पर पाबंदी लगा दी गई। हुकूमत पंजाब ने यूटिलिटी स्टोर्स के लिए बड़ा ऐलान कर दिया। टोबा टैक्सिंग समेत पंजाब भर के तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर इकट्ठा राशन लेने पर पाबंदी आयद कर दी। NGO समेत किसी भी शख्स को इकट्ठा राशन नहीं दिया जाएगा, जिसका तमाम मराकज को मरासला जारी कर दिया गया, जिसमें लिखा गया है कि पाबंदी का मकसद हर शहरी को रोजमर्रा की अशिया पहुंचाना है। चंद लोग राशन तकसीम करने का बहाना बनाकर यूटिलिटी स्टोर से अहम अशिया बड़ी तादाद में खरीद कर चले जाते थे, जिसकी वजह से आम इंसान को परेशानी का सामना
सामना होता था। गरीबों वास्ते ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਸਮਾਨ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖਰੀਦੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਖੜ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। हुकूमत ने ਜਿਹੜਾ ਇਕਦਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇਕਦਾਮ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਪਹਿਲੇ ਇਕੱਠਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਟਾਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਕਦਾਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲੋਕ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਕਿ दूसरे लोग भी गरीब भी लेके चल जान। शहरियों की जानिब से हुकूमत से मुतालबा किया कि जिस तरह रमजान में अशिया की फराहमी यकीनी बनाई गई है, इसी तरह बाद में भी फराहम की जाए ताकि अवाम को ज्यादा से ज्यादा सहूलियात दी जा सकें। कैमरामैन राशिद अनवार के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक सिंह। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि जखीरा अंदोजी पर गंदम जब्त और जुर्माना भी आयद किया जाएगा। बाज न आने वालों के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज करवाए जाएंगे। कमिश्नर इशरत अली ने डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली के हमरा गंदम खरीदारी मुहिम पर मीडिया ब्रीफिंग दी। डिप्टी डायरेक्टर फूड सरदार सैफुल्ला जोया और डीएफसी अली इमरान भी हमरा थे। कमिश्नर फैसलाबाद ने बताया कि गंदम बहरान से निमटने के लिए हुकूमत ने जामिया पॉलिसी बनाई है। तकरीबन 6 मैट्रिक टन हदफ है, जबकि 4 लाख मैट्रिक टन से जायद गंदम का हदफ मुकम्मल हो गया है। हमारा जो टारगेट है, हमारा ओवरऑल टारगेट जो था वो तकरीबन 6 लाख मैट्रिक टन था, 5,92,000 कुछ, तो उसमें से हम लोग 4,08,564 तक कर चुके हैं, जो कि 69% बनता है। कमिश्नर का कहना था कि गुज़श्ता साल मिडल मैन सरगर्म रहा, इस साल ऐसा नहीं होगा। गंदम का हदफ पूरा करेंगे। चनियोट में 80%, झंग में 80%, जबकि टोबा में 73% हदफ मुकम्मल कर लिया है। गंदम की खरीदारी अगले महीनों में भी जारी रहेगी। झंग में भी हम आज शाम तक इंशाल्लाह 80% से ऊपर चले जाएंगे। टोबा में हम इस वक्त 73% पे हैं, जो कि इंशाल्लाह अगले ईद तक हमारा टारगेट है कि इन 3 ज़िलों में झंग, चनियोट और टोबा टेक सिंह, हम तीनों में 90% की फिगर को क्रॉस कर दें। डिप्टी डायरेक्टर फूड सरदार सैफुल्ला जोया ने कहा कि जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। जितनी गंदम की है वो ना सिर्फ अपने डिस्ट्रिक्ट से परचेज कर सकते हैं बल्कि अदर डिस्ट्रिक्ट से भी कर सकते हैं, लेकिन उनको परमिट के मतहत काम करना पड़ेगा। अफसरान ने बताया कि जखीरा अंदोजी पर गंदम पकड़ी जाएगी और जुर्माना भी आयद होगा। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। इसी हवाले से आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर आमिना मुनीर ने गंदम खरीदारी के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जिले भर में गंदम खरीदारी का टारगेट जल्द मुकम्मल कर लेंगे। डिप्टी कमिश्नर आमना मुनीर ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद शाहरुख और डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर राहील अशरफ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, जिला भर में गंदम खरीदारी मराकज पर काश्तकारों के लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। गंदम खरीदारी में किसानों का इस्तेहसाल किसी सूरत नहीं होने देंगे। काश्तकार खुशहाल होगा तो मुल्क में खुशहाली आएगी। गंदम खरीदारी में मिडल मैन के किरदार को खत्म किया जा रहा है। गैर कानूनी तौर पर जखीरा अंदोजी करने वालों के खिलाफ नया ऑर्डिनेंस आ चुका है, जिसके बाद जखीरा अंदोजी पर भारी जुर्माना और कैद की सजा होगी। डिप्टी कमिश्नर ने कहा, लोगों को तंबिया किया जाता है कि वो गैर कानूनी तौर पर जखीरा अंदोजी से इज्तनाब करें। FIR देने का और उसके बाद अरेस्ट करके समरी ट्रायल करने का अख्तियार जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के पास है। तो ये बहुत आसान और सादा तरीका है जिसके जरिए किसी भी बंदे को जो कि जखीरा अंदोज है और उसको सजा देना बहुत ज्यादा आसान है। जिला टोबा टेक सिंह के लिए रवां साल 1,09,504 मैट्रिक टन गंदम खरीदारी का हदफ मुकर्रर है, जिसमें 76% गंदम खरीदी जा चुकी है। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट का टारगेट था वो 1,09,504 मैट्रिक टन है और मैट्रिक टन वही है कि 1,000 किलोग्राम के बराबर। बारदाना जो है वो हमने अभी तक जो इशू किया है हमारे टोटल टारगेट का 94% हम इशू कर चुके हैं। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि अब तक जिला भर में 94% बारदाना तकसीम कर दिया गया है। किसानों से दरखास्त है कि वो जल्द अज जल्द गंदम मराकज पर पहुंचे। मौसम क्लियर होने के बायस अब उम्मीद की है कि जल्द से जल्द ये टारगेट हासिल कर लिया जाएगा। कैमरामैन राशिद अनवार के हमरा राना आजर नूर, टोबा टेक सिंह। आगे बढ़े और आपको बताएं कि समाना पुल की 27 साल आसिफा गुर्दों के मूजी मरज में मुब्तला है। इलाज के लिए 17 लाख रुपए दरकार है, लेकिन घर में फाकों की नौबत है। ये रिपोर्ट देखिए। समाना पुल की रहायशी आसफा पिछले 2.5 साल से गुर्दों के मूजी मर्ज में मुब्तला है। मरीजा की रिपोर्ट के मुताबिक उसके दोनों गुर्दे खराब हो चुके हैं। बर वक्त ऑपरेशन से आसफा की जान बचाई जा सकती है। आसफा का कहना है, 2.5 साल से बीमारी से लड़ रही हूँ। वो अपने 10 माह के बच्चे के लिए जीना चाहती है। डॉक्टर ने क्या 17 तो 18 लाख रुपया चाहिए ऑपरेशन वास्ते। भाई मेरा छोटा मेरे तो ना
3-4 ਸਾਲ ਛੋਟਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰਦਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਵੇ। मरीजा की वालदा का कहना है अपना जाती घर बेचकर बेटी पर लगा दिया। 17 लाख रुपए बेटी के इलाज के लिए दरकार हैं, लेकिन नौबत यहाँ तक आ पहुंची कि 1700 भी नहीं है। 2.5 मरले का मकान सी मेरे को कच्चा पक्का बनया, वो भी मैं बेच के इत्थे आ गई भी कोई मेहनत इत्थे करन दियां बच्चियां ते इलाज करावां दी। मेरे बच्चे 2 कमांदे आ, वो भी इहदे इलाज ते लगदे आ पे। अगर मुखय्यर हजरात इस फैमिली के साथ तावन करें तो आसफा दोबारा जिंदगी की तरफ लौट सकती है। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ शाहिदा परवीन, फैसला। कोरोना के पेश नज़र गुज़िश्ता 2 माह से जेलों में कैदियों से मुलाकात तो बंद है, मगर अपने प्यारों तक अशय खुरनोश और ईदी भेजी जा सकती है। सिटी 41 के तवस्सुस से IG की जानिब से खुसूसी काउंटर कायम करने की खबर मिलते ही जेलों के बाहर लवाहिकीन का तांता बन गया। चंद रोज कबल सिटी 41 ने IG पंजाब जेल खानाजात का मुरासला कैदियों के लवाहकीन तक पहुंचाया तो उनमें खुशी की लहर दौड़ गई। जेलों में कैद अपनों तक ईदी पहुंचाने के लिए लवाहकीन का तांता बन गया। IG पंजाब जेल खानाजात की जानिब से मुरासला जारी किया गया था कि पंजाब भर की जेलों में मौजूद कैदियों तक लवाहकीन की जानिब से ईदी पहुंचाने के इंतजाम किए जाएं। इसके लिए खुसूसी काउंटर्स कायम किए जाएं जिनके जरिए लवाहकीन अपने प्यारों तक मुख्तलिफ अशिया पहुंचा सकें। कोरोना की वजह से गुज़िश्ता 2 माह से कैदियों के अपने लवाहकीन के साथ मुलाकात बंद है, लेकिन सिर्फ ईदी पहुंचाने का इंतजाम कर दिया गया है, जबकि जेल इंतजामिया की जानिब से SOPs पर अमल दरामद को भी यकीनी बनाया गया है। कैमरा टीम के हमरा फरजाना सदीक, सिटी 41 फैसलाबाद। चिन्योट में कायम मुगलिया दौर के मरकजी ईदगाह हुकूमती तवज्जो के मुंतज़िर है। मरकजी ईदगाह के अहाते में कचरे के ढेर लग गए। म्युनिसिपल इंतजामिया ईदगाह की सफाई सुथराई करने में नाकाम दिखाई देने लगी है। मुगलिया दौर में बनने वाली चिन्योट की मरकजी ईदगाह मौजूदा दौर हुकूमत में खस्ता हाली के मनाजिर पेश करती है। मरकजी ईदगाह के अहाते में कचरे के ढेर लग गए हैं, जिन्हें उठाने के लिए म्युनिसिपल इंतजामिया मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देती है। शहरियों का कहना था कि नमाज ईदैन के लिए मरकजी ईदगाह में आते हैं, लेकिन ईदगाहों की तहाल सफाई सुथराई न करना म्युनिसिपल अफसरान की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर चिन्योट से ईद उल फितर से कबल मुगलिया दौर की मरकजी ईदगाह की सफाई सुथराई करवाने का मुतालबा दिया। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योट। जंग के एहसास कफालत सेंटर में इमदादी रकम के हसूल के लिए आने वाले मुस्तहिकीन की मुश्किलात कम ना हो सकी, ये रिपोर्ट देखिए। एहसास कफालत सेंटर में मर्दो खवातीन को माली रकूम की तकसीम का सिलसिला जारी है। जिला भर में कफालत सेंटर कायम किए गए हैं। इस्लामिया हाई स्कूल, आदिवाल स्कूल और गजाली कॉलेज में भी कफालत सेंटर में मर्दो खवातीन का रश लगा है, जहां समाजी फासले की हिदायत को नजरअंदाज कर दिया गया है। 12,000 रुपए के हसूल के लिए आने वाले अफराद को मुश्किलात का सामना है। हम भी सुबह के 8 बजे के आए हुए हैं। मेरा मियाँ मजदूर है, परसों भी आए थे, उन्होंने कहा पी के दिन आना, वो भी सुबह के बैठे हुए मिलने रहे पैसे। भाई यानी 1 हफ्ते से आ रहा हूँ मैं, मेरा मैसेज आया हुआ 12,000 रुपए का। मंगल वाले दिन आया था, उन्होंने कह रहे अंगूठा ठीक नहीं है। नादरा से तस्दीक करवाया, मैंने तस्दीक करवा के आया, फिर भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। वो पैसे नहीं दे रहे, दोपहर को आना, शाम को आना, बार बार चक्के लगा रहे हैं। खवातीन का कहना है कि सुबह आकर कितारों में लग जाती हैं, जबकि सिफारशी अफराद ही बर वक्त इमदादी रकम हासिल करने में कामयाब होते हैं। खवातीन ने इल्जाम आयद किया कि रकम के हसूल के दौरान उन्हें पुलिस एहलकारों की जानिब से धक्के भी दिए जाते हैं। जो हमारी बात ही नहीं को सुन रहा, सुबह से आके बैठते शाम को चले जाते हैं। जो ऐसे सुनते नहीं, जैसे पैना वो धक्के देती हैं, सिपाही वो धक्के दे के चले जाते हैं। मुस्तहक अफराद ने जिले इंतजामिया से मुतालबा किया है कि रकूम की तकसीम के मरहले के दौरान बेहतर इंतजामात किए जाएं ताकि उनकी मुश्किलात कम हो सकें। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 जंग। जंग में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जिले रहनुमा आसिफ अली शाहिद की जानिब से मुस्तहिक खानदानों में राशन की तकसीम की गई। जंग में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जिले रहनुमा आसिफ अली शाहिद की जानिब से मुस्तहिक खानदानों में राशन तकसीम किया गया। इस मौके पर जिला भर से मुस्लिम लीग नून के अहदेदारों ने शिरकत की। साबिक काउंसलर जाहिद परवेज लाला, MSF के रहनुमा अमजद औरा, एडवोकेट मोहम्मद अली सुरबाना समेत दीगर शुरका की जानिब से आसिफ अली शाहिद की खिदमात को सराहा गया। 50 हलकों में भी जो मुस्तहिक लोग हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़ेरे इत्माम ये राशन उन लोगों तक पहुँचाया जा रहा है जो वाकई मुस्तहिक हैं और इस बात के अहल थी। जो दिहाड़ीदार तबका, मजदूर तबका जो इस लॉकडाउन से मुतासर हुआ था, कोरोना की वजह से, लॉकडाउन होने की वजह से बेरोज़गार बैठे हुए हैं, जिनके लिए हुकूमत ने कुछ नहीं सोचा है, वो बेचारे हैंड टू माउथ वक्त गुजार रहे हैं। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ जनाब प्रोफेसर आसिफ शाहिद ड्यूटी साहब की खिदमात को, जिन्होंने अपने लीडरान के हुक्म पर आज ये एहतमाम किया है।
ضلع رہنما آصف علی شاہد کا کہنا تھا کہ اعلیٰ قیادت کی ہدایت پر مسلم لیگ نون مستحق افراد کی مدد کے لیے پیش ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ حکومت کو بھی شہریوں کے لیے بڑا ریلیف پیکیج متعارف کروایا جانا چاہیے۔ خواتین ونگ کی طرف سے اور حضرات کی طرف سے ہم لوگوں نے یہ چھٹا پروگرام ہے ہمارا، تو اس میں ہم لوگوں نے 150 بیگز آج ہم لوگ تقسیم کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ایک فیز اور بھی ہے ہمارا جس میں ہم لوگ معذور لوگوں کو، اس میں خواجہ سراؤں کو، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیف اینڈ ڈم ان کے لیے بھی ہم لوگوں نے راشن کا بندوبست کیا ہے۔ انشاءاللہ وہ بھی عید سے قبل ہم ڈیلیور کر دیں گے۔ آصف علی شاہد کا کہنا تھا کہ عید سے قبل خواجہ سراؤں اور اقلیتی افراد کو بھی راشن اور عید کی خوشیوں میں شامل کیا جائے گا۔ کیمرامین وسیم عزیز کے ساتھ اویس خان، سٹی 41 جنگ۔ ادھر شور کوٹ میں قطر چیریٹی کی جانب سے 800 مستحق خاندانوں میں راشن کے پیکٹس تقسیم کیے گئے۔ شور کوٹ میں قطر چیریٹی کی جانب سے 800 مستحق خاندانوں میں راشن کے پیکٹ تقسیم کیے گئے۔ انچارج قطر چیریٹی سردار قریشی کا کہنا تھا کہ قطر چیریٹی کی جانب سے تقسیم کیے گئے پیکٹس میں چاول، آٹا، دالیں، گھی، چائے کی پتی، روح افزا اور چنے شامل ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ صدقہ قطر کے 4500 آٹے کے تھیلے ڈسٹرکٹ اور تحصیل انتظامیہ کے تعاون سے غریب اور نادار لوگوں میں تقسیم کیے جائیں گے۔ قطر چیریٹی پچھلے 2 سال سے ڈسٹرکٹ جنگ میں کام کر رہی ہے، اور ہم نے کووڈ کے رسپانس میں یہ ابھی ڈرائی فروٹ راشن سٹارٹ کیا تھا۔ 800 لوگوں کو اب تک ہم تقسیم کر چکے ہیں، اور اس کے بعد ابھی جو ہمارے پاس زکوٰۃ الفطر ہے 4500 بیگ فلور ہم نے ریسیو کیا ہے، جو کل سے ہم نے ڈسٹریبیوشن کرنی ہے۔ مستحق افراد کا کہنا تھا کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے گھروں میں نوبت فاقوں تک آ چکی تھی۔ قطر چیریٹی کی جانب سے راشن فراہم کرنے پر شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بہت حالات خراب تھے، گھی، آٹا، چاول، چنے، چینی، پتی، سارا کچھ دیا قطر والے کی مہربانی، قطر والے کا ساتھ۔ قطر چیریٹی انتظامیہ کی جانب سے رضائے الہی کی خاطر راشن کے پیکٹ تقسیم کرنا قابل تحسین ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ شہزاد علی، سٹی 41 شورکوٹ۔ رپورٹ آپ نے دیکھی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، چنیوٹ میں احساس کفالت پروگرام کا تیسرا فیز ہے۔ کورونا متاثرہ مستحقین میں امدادی رقم کی تقسیم بھی جاری ہے۔ وزیراعظم کی ہدایت پر احساس سینٹر میں بائیو میٹرک پر انگوٹھے اپڈیٹ کرنا، کارڈ رینیول سمیت ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنوائے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے اشتراک سے صوبہ بھر کے 25 لاکھ مستحقین میں امدادی رقوم کی تقسیم جاری ہے، تاہم ان احساس سینٹرز پر بائیو میٹرک کے مسائل تھے، جہاں انگوٹھے میچ نہ ہونا یا کارڈ کا ایکسپائر ہو جانے سمیت اسٹیٹس آف ڈیتھ کیسز شامل تھے، جن کی فوری درستگی اور نادرہ وین پہنچائی گئی ہیں، جہاں بائیو میٹرک کے لیے انگوٹھے اپڈیٹ، ایکسپائری کارڈ رینیول سمیت اسٹیٹس آف ڈیتھ سرٹیفکیٹس بنائے جا رہے ہیں۔ اس موقع پر فوکل پرسن احساس کفالت پروگرام شہزاد پٹو کا کہنا تھا کہ میڈم ثانیہ نشتر چیئرپرسن احساس کفالت پروگرام نے نیکسٹ آف کن پالیسی بھی متعارف کروا دی ہے، جس کے مطابق جن درخواست گزاروں کی ڈیتھ ہوئی ان کی غیر شادی شدہ بیٹیوں کے نام پیسوں کی منتقلی ہو سکے گی۔ فوکل پرسن احساس پروگرام نے مزید کہا کہ ایسے افراد اپنے ڈاکومنٹس تحصیل آفس میں جمع کروا کر عید کے بعد اپنے نام پر پیسے ٹرانسفر کروا سکیں گے۔ کیمرامین محمد اورنگزیب کے ساتھ بابر منیر، سٹی 41 چنیوٹ۔